عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں. آج علیہ السلام سے اٹھنے نہیں ہو رہا, اتنا وزنی. عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی اٹھائیں, کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ. حضرت ہاں یہ ویڈیو بخاری میں آتا ہے یہ عقبہ بن ابی معیط میں. جی شیخ دیکھیں یہاں پہ دیکھیے صحابہ کرام پہ کتنا بڑا الزام لگا دیا باتوں باتوں میں, اور میرے خیال سے کسی اور کلپ میں اس نے بہت ہی کلیئر بولا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس معاملے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے یہ صحابہ کرام کیوں نہیں آئے؟ پہلے یہ تو ثابت کرو یہ صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے, یہ صحابہ موجود تھے وہاں پہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں, انہوں نے ٹھیک ہے یہ صاف کیا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دینا کہ صحابہ نے جا کے ان کو بتایا کہ آپ جا کے سب کرو, یہ کہاں ہے؟ یہ تو کسی روایت میں نہیں ہے. یہ بات کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ صحابہ نے جا کے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ آپ جا کے صاف کریں, ہم ایسا نہیں کریں گے. تو یہ شخص اپنی طرف سے صحابہ کرام کے خلاف جو بغض ہے اس کے دل میں نا, اس کے اظہار کے لیے اپنی طرف سے بات بنا رہا ہے. اچھا یہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی صحابی کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں تو صحابہ کا جو ارسال ہے نا, ارسال کا مطلب صحابہ اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے, پھر بھی جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہ واقعہ مانا جاتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ اس وقت موجود تھے. کوئی بھی صحابی کوئی واقعہ بیان کرے تو وہ صحابی اس وقت موجود نہ بھی ہو تو بھی صحابی بیان کرتا ہے, صحابی پر کے باتیں ہم مان لاتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کیف کان بدء الوحی, وہ آپ پڑھیں گے, اور ایسے کئی روایتیں ہیں جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہی ہیں جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھی. ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بہت سارے واقعات بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آخر میں اسلام قبول کیا نا بعد میں, تو قبول اسلام سے پہلے کے جو واقعات وہ بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کو مانا جاتا ہے, اس کو پر ایمان لایا جاتا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کرنے کا, یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے. ایسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے عہد رسالت میں, لیکن وہ ایسے کئی واقعات بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ عبداللہ بن عباس موجود نہیں. تو یہ قاعدہ ہے محدثین کا, اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ صحابہ اگر کوئی, اس کو ارسال بولتے ہیں, صحابہ کی جو مرسلات ہے نا وہ مقبول ہیں. تو ان مرسلات سے اگر صحابہ کرام ایسا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں ہم اس کو سچا مانتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن اس واقعات سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ آپ یہ سمجھ لگے کہ نہیں یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں چاہے اما عائشہ ہوں رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی صحابی ہوں, آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے, یعنی یہ واقعہ ہو رہا تھا, کسی صحابی نے واقعہ بیان کیا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحابی بھی وہاں پہ موجود تھے. تو صحابہ کرام پہ الزام لگانے سے پہلے یہ پروف کرنا پڑے گا, یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ صحابہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا اور جا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ آپ جا کے کریں. تو یہ بات بے بنیاد ہے جو صحابہ کرام کے خلاف اس نے جو ہے یہ الزام لگا رہا ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں, یہ روایتوں میں ہیر پھیر کر رہا ہے, اس کو میں نے کلیئر کر دیا. جی بلکہ حضرت ابو بکر کے بارے میں جو بات کہہ رہا ہے نا, حضرت ابو بکر سے تو یہ بات ثابت ہے. عقبہ ابن معیط تھا یہ کہ کون تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر کے کھینچا کس کے, تو کس کے جب کھینچا تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے, تو حضرت ابو بکر آگے بڑھے, حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کو چھڑایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے وہ بات فرمائی, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے تھے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. حضرت ابو بکر سے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آگے بڑھے. ایک مرتبہ آگے بڑھے اور لوگوں نے اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے. بلکہ حضرت علی نے خود جو ہے نا ایک واقعہ نقل کیا ہے, انہوں نے ایک مرتبہ, میں سندے میں چیک نہیں کر سکا ہوں لیکن میرے خیال سے یہ صحیح, ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر اور جرأت مند کون ہے, تو جو ان کے سامعین تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہیں بہادر سب سے. تو انہوں نے کہا اس حیثیت سے تو میں بہادر ہوں کہ جس نے بھی مجھ سے لڑائی کی مجھے کبھی بھی ہرا نہیں سکا, لیکن صحابہ میں سب سے بہادر حضرت ابو بکر تھے. اور انہوں نے پھر وہ پورا واقعہ نقل کیا کہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قریش کے لوگ مارنے لگے, اور جو حضرت علی تھے بہت چھوٹے تھے عمر میں, وہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے, وہ دفاع نہیں کر سکتے تھے.
تو حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اپنے بازوؤں سے، اور وہی کہنے لگے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا مار کھایا انہوں نے کہ وہ زخمی ہو گئے۔ ایسے ہی بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ یعنی یہ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا کون دے گا، تو وہ بہت مشکل ترین جگہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو اللہ کے نبی سپہ سالار تھے تو دشمنوں کا سب سے بڑا نشانہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خیمہ تھا، تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، حضرت ابو بکر آ کر آگے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دوں گا۔ اور سب سے مشکل ترین موقع تو ہجرت کا موقع تھا، اور اس کی گواہی تو قرآن مجید دے رہا ہے خود کہ اتنا مشکل ترین موقع تھا کہ صحابہ کرام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مشکل ترین موقع پہ جس کو اپنے ساتھ رفاقت کے لیے چنا وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پورے ہجرت کا موقع وہ موقع تھا جب مشرکین تلواریں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، اس موقع پر کون اللہ کے نبی کے ساتھ تھا؟ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش اور کے لیے نکلے ہیں مکہ سے، تو حضرت ابو بکر کبھی آگے چلے جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں چلے جاتے، کبھی بائیں چلے جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر ساتھ میں نہیں چل رہے ہیں تو اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ تم ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہو، کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں چلے جاتے ہو، کبھی بائیں چلے جاتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے آپ پر حملہ آور ہوگا تو میں آگے چلے جاتا ہوں، اگر کوئی حملہ ہو تو میں دفاع کرنے کے لیے موجود رہوں، جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تیر آ سکتا ہے تو میں پیچھے چلے جاتا ہوں کہ تیر پہلے مجھے لگے، جب ڈر لگتا ہے کہ دائیں سے کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے تو میں دائیں چلے جاتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے کہ بائیں سے کوئی حملہ ہوگا تو میں بائیں چلے جاتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر کی قربانیاں تو جگ ظاہر ہے، یہ ظالم انسان یہ کتنا بدبخت ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ میں کوئی آگے نہیں بڑھا، یعنی اس نے مشن بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ صحابہ تو وہ لوگ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی تجسس ہوتا تھا کہ میں دیکھوں کہ میدان جنگ کی صورت حال کیا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر نکال کر کے کندھے کے اوپر سے دیکھنے کی کوشش کرتے تو حضرت طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیچے جھکا دیتے تھے اور کہتے تھے نہری تو نہ نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے، جب تک میرا سینہ تیروں سے چھلی نہ ہو جائے کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ صحابی کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اسی عہد کے موقع پہ تقریباً 9 صحابہ اللہ کے نبی کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئے، یہ بدبخت کہتا ہے کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت زبیر، آپ خود عہد کے موقع پر صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھی کیسے اپنے دفاع کے لیے پوری جان اللہ کے نبی کے سامنے حاضر کر دی۔ مطلب یہ ظالم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کو تباہ کرے۔ یہ کتنی بڑی جرت کی بات صحابہ کے بارے میں بول رہے کہ صحابہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی دفاع کے لیے آگے نہیں بڑھے، اس کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو اس کو سنتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اصل میں جو تکنیک ہے، اس کی جو تکنیک ہے وہ کیا ہے، جیسے متفق علیہ عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا جو ہے وہ ہے، تو یہ ڈائریکٹ اس عقیدے کو ٹارگٹ نہیں کرتا، اسی لیے لوگ دھوکے میں رہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ الصحابۃ کلھم عدول، یہ عقیدہ غلط ہے یا یہ خیال غلط ہے، یہ اس طرح نہیں کہتا۔ کرتا کیا ہے کہ جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے تو ایک ایک صحابی کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے۔ پہلے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جس کے بارے میں ماحول بنا ہوتا ہے، پھر ان لوگوں پہ ٹارگٹ کرتا ہے جس میں کہیں موقع پاتا ہے، اور اسی طریقے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی کے کھیت میں جو ہے، لطیفہ بھی ہے تاکہ ہمارے سامعین تھوڑا مزید نشیط ہو جائیں، کہ کسی کے کھیت میں جو ہے 2-3 لوگ گئے گنا جو ہے توڑنے کے لیے، یا مکئی کا کھیت تھا اس کو چرانے کے لیے، تو وہ اس میں جو ہے کوئی برہمن تھا اور کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا۔ جب اس نے پکڑا تو ایک بیک تینوں کو نہیں مارا، تینوں کو ایک بیک کچھ نہیں کہا کہ یہ فلانے جو ہے چھتری صاحب ہیں اور یہ فلانے بابن ہیں، ہمارے جو ہے مذہبی کاموں میں کام آتے ہیں، یہ آگے اگر انہوں نے چرا لیا تو کوئی بات نہیں، تو فلانا جات کا، تیری کیسے ہمت ہوئی کہ تو نے یہ کام کر لیا۔ اس کو پیٹا، اس کے بعد میں جب اس کو پیٹ لیا، جب اس پہ کام کر لے گیا، تب دوسرے کو نشانہ سادھا کہ بھئی یہ تو ہمارے مذہبی کاموں میں آتے ہیں، مگر تیری کیا حیثیت، کیسے آیا چوری کرنے؟ جب ان کو بھی پیٹ لیا تو اوپر پہنچ گیا۔ تو یہی حال اس پلمبر صاحب کا ہے کہ یہ جہاں جہاں موقع پاتا ہے تو وہاں اپنے برے نظریات گھسیڑتا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کا، ابھی کسی نے کمنٹ کیا کہ پتہ نہیں کیا نوجوانوں کا مسئلہ کیوں نہیں لیتے آپ شیخ لوگ یا ایسا کچھ۔ ارے بھائی نوجوانوں ہی کا تو مسئلہ ہے،
मारा है पूरा, इसने गंदगी फैला के रखा हुआ है हमारे मरकज अकीदत और हमारे मरकज अकीदत। नौजवानों पे शेख शाबान थोड़ा सा रुकूंगा। अल्लाह के फजल करम से हमने प्लान किया है इंशाल्लाह नौजवानों पे हमारी 2 खुसूसी स्ट्रीम चलती है। यहाँ पे वहाँ पे शुरू हो चुकी है IAC से। शेख खलील वो स्ट्रीम चलाते हैं, नौजवानों के मसाइल पे डिस्कस करेंगे, और I+ से भी इंशाल्लाह जैद भाई शेख सरफराज वगैरह शुरू करेंगे। तो नौजवानों पे भी हमने खास प्रोग्राम डिजाइन किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू होंगे। IAC से शुरू हो चुके हैं, यहाँ से भी इंशाल्लाह शुरू होंगे। तो बहरहाल वही बात, ये नौजवानों ये बात भी नौजवानों से मुताल्लिक है, क्योंकि नौजवान लोग ही इसके फितने से जो है भटक रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मसला है भाई, हमारे सारे रवात कुरान के और हदीस के जो हैं वो मजरू हो रहे हैं, तो ये नौजवानों ही का मसला है। तो इसकी आइडियालॉजी है ये, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था कि इसकी आइडियालॉजी है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं सहाबा किराम का मुनकिर वो नहीं है, सहाबा किराम के बारे में जो अहले सुन्नत का अकीदा है वो मानता है, जो लोग ये कह रहे हैं वो धोखे में हैं, वो गलती पर हैं। सहाबा अहले सुन्नत के इस अकीदे को वो नहीं मानता है। उसको जहां जाभी अब्दुल्ला बिन मसूद का आपने सुना, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुजुर्ग साहब या इशारे के नाम में थोड़ा सा एक शुबहा डाल देना, शुबहा डाल के छोड़ देना, जहां पे वो बोलने की जहां एक्सपोज हो जाएगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेगा और उनको डायरेक्ट उन पे वार करेगा, तो सारे नौजवान भड़क जाएंगे। सारे लोग जो उसकी तरफ गिरवीता हैं और उसको मुहक्किक आजम समझ रहे हैं वो भड़क जाएंगे। इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नहीं लेगा, बल्कि क्या कहेगा, कोई रिवायत पेश करेगा और उसमें कहीं से ऐड कर देगा, ला करके थोड़ा सा शुबहा डाल देगा। तो इस तरीके से शुबहा धीरे धीरे राफियत की तरफ ले जा रहा है। और प्रैक्टिकल में ऐसा हो रहा है कि हमारे मजहबी तबकात के बहुत सारे लोग राफिजी हो रहे हैं और अलल ऐलान हो रहे हैं, और इन्हीं सारे लोगों का फैलाया हुआ शुबहा होता है। पहले शुबे में आते हैं, फिर राफिजी को सुनने लगते हैं और राफिजी हो जाते हैं। तो ये नौजवानों का मसला है। शेख किफायत मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, जी आगे पीछे से कर रहा हूँ, तो जी। फिर एक बार सुन लेते हैं। हजरत रखी किसने थी? नहीं, हो कुछ अब्दुल्ला बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? सहाबा इसका ने जवाब जाके हजरत फातिमा को कहा कि ये उजड़ी उठाएं, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात है, कितनी गलत बात है। हम बात कर चुके हैं। मसूद ने कहा है ये बात, मतलब अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये लीडर था। चलिए आगे जी अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली बात उन्होंने खुद कही है कि मैं बहुत मजबूर था, मैं गुलाम था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद उसको गुलाम देखा कि अगर मेरा कोई तहफ्फुज होता, लौ कान तरहतहु, इस तरह के अल्फाज हैं, लौ कान ली मनअतुन ला तरहतहु, कि अगर मुझको कोई तहफ्फुज देने वाला होता मदीना में, वो बहुत गरीब किस्म के इंसान थे और कोई क्योंकि वो थे नहीं असल में असल में वो मक्का के नहीं थे, मक्का में उनका कोई खानदान नहीं था। वो अगर आगे बढ़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते तो कोई मुकाबला करने के लिए उन पर आता तो कोई उनका तहफ्फुज करने वाला नहीं था। तो वो रिवायत तो उन्होंने खुद कही है कि वो बहुत मजबूरी की हालत में थे, अगर कोई उनको तहफ्फुज देने वाला होता तराहतहु, तो वो कह रहे हैं कि मैं खुद हटा देता अल्लाह के नबी से आगे बढ़ करके। तो माजरत जो उन्होंने खुद ही नकल कर दी थी, मैं बहुत मजबूरी की हालत में था क्योंकि कोई मक्का में मुझे तहफ्फुज देने वाला नहीं था। अच्छा, इसने एक दूसरी क्लिप में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर भी तान किया इसी वाकई में कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जी हाँ, किया है वो हाफिज जुबैर साहब ने उसका जवाब दिया, मुझे भी नहीं, लेकिन उसने तान किया इस बात का कि हजरत अबू बकर के भी आगे नहीं बढ़े। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तो नहीं थे ना उस वक्त, तो उन पे कैसे इसने तान कर दिया? तो और सहाबे, कई सहाबे कराम को लाके यहाँ खड़ा कर दिया। रिवायत में ये अल्फाज साफ मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, रिवायतों में अल्फाज साफ मौजूद है कि उस वक्त कुरैश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो लोग थे कुरैश, मुशरिकीन कुरैश थे, सहाबा थे ही नहीं उस वक्त अल्लाह के नबी के साथ। लेकिन इसने वही शो किया है कि सहाबे कराम खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इस आदमी ने वही सीन पेश किए कि सहाबे कराम माज़अल्लाह खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और किसी ने जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का नाम ले लिया। हालांकि अबू बकर सिद्दीक, ये मारना पीटना तो इस तरह से गुस्ताखी करना तो बहुत बड़ी बात है। सही बुखारी की रवायत है ना कि एक शख्स ने सिर्फ इतना कह दिया कि तुम लोग नबी का साथ छोड़ दोगे, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जितने बाअखलाक थे, इतनी नरम तबीयत के थे, उस वक्त गजबनाक हो गया। कहा उमसुस बज़र लात, जो लात शर्मगाह है ना, लात जो बुत है उसकी शर्मगाह जाके चूस, इस तरह की बात करता, हम नबी को छोड़ देंगे। तो बताइए, वो जबान दराजी भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। और उनके बारे में ये बात कहना कि नहीं वो लोग जो है बेहुरमती कर रहे थे और वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, ये बहुत गलत बात है, बहुत बेबुनियाद बात है। जी आगे जी कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो। हाँ, वलीद बिन उकबा, इसी का बेटा वलीद बिन उकबा, जिसको कूफे का गवर्नर लगाया, मुस्लिम शरीफ में आता है हजरत उस्मान के दौर में शराब पी के नमाज पढ़ाता था, जिसकी वजह से हजरत उस्मान के लोग सहाबा के खिलाफ हो गए।
रुकिए देखिए, नमाज पी के शराब पी के नमाज पढ़ाता था मुस्लिम में, कहाँ मुस्लिम में? ऐसे बेवकूफ बनाता है ये बंदा, झूठ बोलता है। सही मुस्लिम में एक वाकया है कि इन पे शराब का इल्जाम लगा, कोई प्रूफ नहीं किसी के पास कि शराब पिया, यानी ये शराब पिया, ये महज इल्जाम है। सही मुस्लिम में का इल्जाम, उस इल्जाम को इस शख्स ने क्या बना दिया, उसको हकीकत बना दिया, और ये उनका आदत बना दिया कि शराब पी के नमाज पढ़ाते थे। और मौदूदी ने यही कहा कि वो शराबी थे। मौदूदी ने लिखा ना खिलाफत व मुल्कियत में, जाके देखें, हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह ने बहुत ही तफसील के साथ इसका, ये जो बोल रहा है ना वीडियो में, इसका बहुत ही डिटेल में तफसील में हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह ने जवाब दिया है खिलाफत व मुल्कियत में। जिसको डिटेल चाहिए जाके पढ़े, बहुत तफसील से जवाब दिया है। तो ये आदि यानी शराबी बना रहा है कि वो शराब पी के नमाज पढ़ाते थे। मौदूदी ने लिखा कि वो बाद में पता चला वो तो शराबी है। अस्तगफिरुल्लाह। भाई, एक लाइफ में एक बार इल्जाम लगा शराब का, साबित भी नहीं हुआ, फिर भी उनको ये लोग शराबी बनाए जा रहे हैं। आगे चलाइए वीडियो। उस्मान के असली असबाब सही बुखारी, जाली असबाब नहीं, इसका बाप ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि यही वो असबाब है माज़अल्लाह जिसकी वजह से उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद किया गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जो वलीद पर जो इल्जाम लगा ना कि शराब पी के नमाज पढ़ा रहा, वलीद ने कुछ लोगों की मरम्मत की थी, वहां पे कूफा में बदमाश लोग थे, तो बदमाशों को उनको सबक सिखाया। अब वो लोग वलीद के पीछे पड़ गए, उस पे आए दिन कोई ना कोई इल्जाम लगाते रहते थे। अब एक दिन जो है उन्होंने पता नहीं क्या पी लिया, हो सकता नबीज पिया हो, क्या पिया हो, लेकिन बहरहाल उन लोगों ने इल्जाम लगा दिया, नहीं वो शराब पी लिया ये। अब ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये मुकदमा आया, और वहां पे कुछ लोगों ने कहा ये कि उन्होंने किसी न किसी ने कह किया, और सही मुस्लिम में ये किसी ने दावा किया शराब पिया, लेकिन जो गवाही होती है ना, मोतबर गवाही, जिसकी बुनियाद पर बाकायदा कोई इल्जाम साबित हो, वो गवाही कोई पेश नहीं कर सका। उसके बावजूद भी अच्छा, एक ये जो इसने कहा ना कि उस्मान, अच्छा उसको चलिए, सही बुखारी में आता है ये, उकबा बिन अबी मुईत में। ये लीडर था कुफार का? हाँ, वलीद बिन उकबा, इसी का बेटा वलीद बिन उकबा, जिसको कूफे का गवर्नर लगाया। मुस्लिम शरीफ में आता है हजरत उस्मान के दौर में शराब पी के नमाज पढ़ाता था, जिसकी वजह से हजरत उस्मान के लोग सहाबा खिलाफ हो गए। शहादत उस्मान के असली असबाब सही बुखारी, जाली असबाब नहीं, इसका बाप उकबा बिन अबी मुईत। देखिए, ये कह रहा है कि वो शराबी नहीं थे ना, शराब पीते थे, उन पे पूरी लाइफ में एक बार भी शराब पीना साबित नहीं, ये महज उन पर इल्जाम है। और ये कह रहा है बंदा कि इसकी वजह से लोग उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ हो गए, यानी उनको शहीद भी कर डाला। जबकि मामला क्या है, एक तो बिला वजह का इल्जाम लगा, उसके बावजूद भी ये जब मामला पहुंचा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक, तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने लोगों के बयानात सुने। अब मैं 1 मिनट में वो रवायत भी निकाल देता हूँ, सही मुस्लिम की जो रवायत है, जहां से ये बंदा कह रहा है कि सही मुस्लिम में है ये। 1 मिनट है, शेख नंबर बताएं, मैं भी खोल देता हूँ। हाँ, एक बस 2 सेकंड दीजिए। ये सही मुस्लिम हदीस नंबर 1707। अच्छा, कूफा वालों के बारे में एक बात ये भी बहुत मारूफ थी कि वो हर काजी को जो है ना उस पे इसी तरह के इल्जाम लगाते थे। यानी हजरत उमर के दौर में किस पे, हजरत साद इब्न अबी वक्कास पे इल्जाम लगा दिए थे कि उनको नमाज नहीं पढ़ानी आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत साद इब्न अबी वक्कास पे इल्जाम लगाए थे ना। तो कूफा के लोग अपनी इन शरारतों में मारूफ थे और इस तरह के इल्जाम लगाते रहते थे। तो हजरत साहब पे उन्होंने, जो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, हाँ, उन पर ये इल्जाम लगा दिया कि उनको नमाज नहीं पढ़ानी आती है। तो इनसे क्या वही थे कि वो एक बार अपने जो है वो वलीद इब्न उकबा पे इल्जाम लगा दे कि उनको शराब पी करके नमाज पढ़ानी। इल्जाम लगा, देखिए सही मुस्लिम की रवायत है, इल्जाम लगाया, कहते हैं कि इसकी वजह से सहाबा खिलाफ है। हालांकि जब ये केस पहुंचा ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास, आप तो रवायत देख लें, सही मुस्लिम की रवायत है, इसमें क्या हुआ, जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये बात पहुंची, तो शहीदा अलैहि रजुलान, 2 लोगों ने गवाही दी। अहदुमा, तो उसमें से एक ने क्या कहा, स्क्रीन पे लाइए ना हदीस। हाँ, वो 1707 है। ज़ैद भाई इसको ले आए, कोई ले आए उसको। जी शेख, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे कुछ और मिल रही है। तो 2 लोगों ने गवाही दिया। देखिए, एक ने दावा किया कि शराब पिया, कोई एविडेंस नहीं, ये नहीं कहा कि मैंने देखा है, इस तरह की गवाही नहीं मानी जाती है। भाई, उस शख्स ने कहा कि शराब पिया है, कोई एविडेंस नहीं है,
कोई सबूत नहीं है। ये नहीं कहा कि मैंने देखा, दूसरे बंदे ने क्या, दूसरे बंदे ने उन्होंने कई किया, कई करने को सबूत बना लिया, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, लेकिन 2 गवाह नहीं है। अगर हम मान भी लें कि एक बंदा दावा कर रहा है तो दूसरा नहीं है, दूसरा शख्स नहीं है, तो इसमें कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उस्मान बिन अफ्फान ने फैसला सादिर कर दिया, हद लगाओ। ये उस्मान बिन अफ्फान का कितना बड़ा दिल था जब उन्होंने देखा कि भाई चलो, इस पे बाद रातों में आता है कि उसने कहा कि अच्छा, वो इनकार कर रहा भी, वलीद इनकारी भी, इकबाली मुजरिम नहीं है, वो इनकारी है, वो कहता नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो बाद बातों में तो उस्मान बिन अफ्फान ने कहा भाई सब्र करो, ये लोग गवाही दे रहे हैं, ऐसा करें, थोड़ा सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, ये मसला है। तो उसके बाद हद जारी किया। अच्छा, जब हद जारी करने का फैसला किया, देखिए सही मुस्लिम की रवायत है, हद जारी करने का जब फैसला किया तो क्या कहा कि उस्मान बिन अफ्फान ने कहा कि या अली कुम फअजलिदहु, कहा कि ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप उठें और इसको हद लगाएं। सुभान अल्लाह, ये इंसाफ देखें आप। यानी उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला ने, एक तो शहादत का जो मेयार था वो पूरा नहीं है, साबित भी नहीं हो रहा, फिर भी उस्मान बिन अफ्फान ने कि चलो भाई ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन चलो उसके बावजूद भी हम इसको सजा दे देते हैं। कहा कि सजा दे दो, और सजा देने के लिए किसको कहा? उन अहले बैत को जिनको ये अली मिर्जा जैसे लोग जो है बनु उमैया का अपोजिशन बना के पेश करते, कि उनके मुखालिफिन थे। तो उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह तआला ने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं कहा कि मारो, किसको कहा? अली रज़ी अल्लाह तआला का। कहा आप उठे और सजा दें, आप उठिए और हद जारी कीजिए। अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हसन रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि हसन आपके, हसन ने भी इनकार कर दिया। हसन रज़ी अल्लाह तआला ने भी, भाई उनका जुमला क्या, उसको भी तोड़ मोड़ के पेश करता है। देखिए रवायत में जुमला क्या है। हसन रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा कि वल्लिहार रहा मन तवल्ला कार रहा। बड़ी प्यारी बात है, इस पर मजा आ जाए, इस पर मतलब मेरा दिल कहता है कभी कभी घंटों बोलो इस जुमले पे, इतना बेहतरीन। पहले उसकी क्लिप चला दे जैद भाई, उसने बड़ा मतलब तहरीफ की है तर्जमे में। अच्छा, वो मिर्जा अली इंजीनियर ने जो तर्जमा किया ना, वो जैद भाई वो क्लिप चलाइए ना, चलाइए देख। वो बहुत तारीफ करके ना, वो बहुत अजीब तरह से काबे में नमाज पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे। नहीं ये नहीं है वो ना, उकबा बिन अबी मुईत ने ला के, ये दूसरी क्लिप आ गई जैद भाई। नहीं ये बाय मिस्टेक आ गई, 1 मिनट। हाँ, इससे वाली ये इसने बाकायदा वो जो वल्ली हा रहा मंतवल्ली का रहा ना, उसका तर्जमा उसने तर्जमा गलत नहीं किया कि वो गलत बात हजरत हसन की तरफ मंसूब कर दी तारीफ करके। बता दीजिए इसको क्या कहा? अरे वो क्या कुछ बोला है, पता नहीं कैसा, कि उसकी खीर भी वही खाए, कैसा कुछ बोला है, पता नहीं क्या अजीब सा तर्जमा किया उसने। उसकी कड़वी भी वही चखे जो उसकी खीर खाता है, ऐसा कुछ तर्जमा। इसी तरह से मुसलमान रियाया और साहबे कराम हजरत उस्मान के खिलाफ हुए थे। बेसिकली इसकी गलत पॉलिसीज थी। ये वजीर खास बना हुआ था ना उस वक्त, तो इस पे आप मेरी एक वीडियो देख लें, हजरत उस्मान शहीद की। नहीं ये नहीं, कौन सी क्लिप थी जो आप देखना चाह रहे हैं शेख? इसके बाद वाली ना जो अभी चल रही थी। चले वो हाँ। नहीं वो तर्जमा इसने, ये इसको नहीं तो पकड़ना ही उसको, इसने जो हजरत हसन की तरफ मंसूब गर्दन पे रख दी जब सजदे की हालत में। वहां पे नहीं ये क्लिप नहीं है। माजरत वो शराब पीता था, जिसमें उसने बोला है ना कि शराब पीता था। अच्छा, ये वलीद बिन उकबा क्या हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम के कत्ल का मामला, तो ये बात तो ठीक है कि उनके खिलाफ जो एक किया है, नहीं सही है, शेख साहबान का कहना भी सही है कि वो ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो अल्लाह ताला ने उन पे एतमाद किया, 5 साल से जिम्मेदार रहे हैं। बेशक गज़वात में हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने 2 अहम लोगों में से एक इनको मुंतखब किया था। तो किसी के मजमूई कैरेक्टर को देख करके इतने दूरअंदेशी अगर हजरत बकर सिद्दीक की देखिए, हजरत उमर फारूक की देखिए, तो पिछले खुलफा के यहाँ जो लोग जिम्मेदार थे, जिनको तजर्बा था, वही वलीद बिन उकबा को गालिबन हजरत अबू बकर के दौर में जो नया इस्लाम कबूल करने वाले लोग थे, उनकी तरबियत पर तय किया गया था। चलाइए जब भाई, शायद यही क्लिप है जी। आगे क्लिप चलाइए। बाद में हजरत उस्मान भी तुसी मरवाया है सरकार, हाँ, बनु उमैया नहीं मरवाया। बाद में फिर खून आलूद जो है ना कुर्ता जा, नहीं ये नहीं है दूसरा है। शेख किफायत आप तशरीह कर दीजिए उसकी। ये जो मुहिम खड़ी हुई, कातली ने ये बोला है ना कि हजरत कौन है भाई, इसने ये बोला है
वल्ली हा रहा का तर्जमा ये किया है कि जो इसकी मीठी चखता है वही इसकी कड़वी भी चखे, इस तरह का कोई तर्जमा किया है। मतलब ये कि ये आपने इसको खलीफा बनाया है, गवर्नर मुकर्रर किया है, तो आप भी चखें, हम क्यों जाए चखने के लिए। वो बहुत लंबी तफसील है, अभी वो जैद भाई तलाश करके डालेंगे इंशाल्लाह। आप तशरीह कर दीजिए। बहुत ही तारीखी जुमला का असल में आज मैं कभी कभी दिल करता है कि आज जो दीनी इदारे हैं हमारे या मसाजिद हैं, वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, उन लोगों को भी ये जुमला सामने रखना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बहुत मैं असल तशरीह इसके सामने रखता हूँ। असल तशरीह है ना कि हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि भाई आप खलीफा हैं, तो जो खलीफे हैं तो खिलाफत एक अच्छी चीज है ना, तो खिलाफत एक अच्छी चीज है। जब आप खलीफा हैं, हुक्म सादिर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये खिलाफत एक अच्छी चीज है, ये आपके साथ है, आपको खलीफा बनाया गया है। तो जिस तरह से ये खिलाफत की कुर्सी आपके पास है, अगर यहाँ पे कोई नाखुशगवार बात आती है तो वो हम क्यों करें, वो भी आप कीजिए, वो कोई और करे। बल्कि हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कतराना इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है कि ये, यानी ये जो उन्होंने कहा ना कि वल्ले हार रहा, क्या जुमला देखिए, वल्ले हार रहा मन तवल्ला कार रहा, यानी इसके अंदर, यानी इस खिलाफत में, यानी जो इमारत है, इमारत लेते हुए अगर कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो इसमें अगर कोई नेगेटिव चीज आती है तो वो भी आप कीजिए, हम क्यों करें उसको। ये जुमला तो इस तरफ भी इशारा करता ना कि ये जो इसको हद जारी करने का जो मसला था, हसन रजी अल्लाह तआला नहीं मुतमईन थे, उनका दिल नहीं कह रहा था कि हम जो है, पता नहीं, देखिए किस अंदाज से केस आया था, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं है, तो हसन रजी अल्लाह तआला ने अपने आप को बचा लिया कि भाई इमारत एक अच्छी चीज आपके पास, अब इसके साथ ये नेगेटिव चीज आ रही है, पता नहीं क्या क्या केस हो रहा है, इसमें हम क्यों जाए मारने के लिए, भाई या आप खुद कीजिए, किसी और को लगाइए, हम नहीं मारेंगे। तो हसन रजी अल्लाह तआला ने इनकार कर दिया, कहा कि हम नहीं हद जारी करेंगे। उसके बाद में इस रवायत में क्या है आगे, कहा कि या अब्दुल्ला इब्न जाफर, ए अब्दुल्ला इब्न जाफर, आप उठिए और जो है आप हज जारी कीजिए। तो फजलदहु अब्दुल्ला बिन जाफर, ये भी अहले बैत में से अब्दुल्ला बिन जाफर उठे और उन्होंने हज जारी की, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु गिन रहे थे। बहरहाल मैं यहाँ जो हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की इंसाफ का आप ये आलम देखें। ये कहते हैं ना इस वाक़ये के से लोग खिलाफ हो, क्यों खिलाफ हो गए? अगर सजा नहीं देते, हिमायत करते, उनको सर पे बिठा लेते, तब आप कहते हैं ना कि साहबा खिलाफ हो गए। लेकिन यहाँ उस्मान बिन अफ़्फ़ान बगैर जुर्म साबित हुए उसको जो है सजा का हुक्म दे रहे हैं, और सजा देने की जिम्मेदारी अहले बैत को दे रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई शुबह की बात न रह जाए, किसी तरह की कोई मसला न रह जाए। इतना बेहतरीन और इतना बड़ा इंसाफ करने वाले के बाद आप कहते हैं कि नहीं वो जो साहबा खिलाफ हो गए। अरे भाई दूसरी बात में आता है कि उनको माजूल भी कर दिया। अब इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है, मुझे बताइए। इससे बड़ा उस्मान बिन अफ़्फ़ान और क्या कर सकते थे जो नहीं किया उन्होंने? एक बंदे पे इल्जाम लगा रहे हैं अहले कूफा, ये कूफी दरिंदे इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम का सबूत भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी खलीफे वक्त उनके तानो तशनी से बचने के लिए सजा का हुक्म सादिर कर रहा, और खलीफे वक्त सजा देने के लिए अहले बैत को खड़ा कर रहा कि आप सजा दे, और अहले बैत ने कोड़े मारे। अब क्या उनको माजूल कर दिया गया? अब क्या बचा भैया? अब आखिर कौन से इंसाफ की तवक्को है? दुनिया की कौन सी अदालत है जिससे बेहतर इंसाफ दे सकती है? पूरी दुनिया का कौन सा जज है जो इससे बेहतर फैसला कर सकता है, इससे बेहतर जो है इंसाफ कर सकता है? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो फजीलत साबित होती है इससे, उनका कितना बड़ा दिल था ये साबित होता है कि उन्होंने केस साबित नहीं हुआ, जुर्म साबित नहीं हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने, ताकि कोई तानो तशनी का बहाना न रहे, उस बंदे को समझाया कि भैया सब्र कर लो, दो लोग आके गवाह दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, इनका मुंह बंद करने के लिए आप ये सब्र कर लो ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। सही क्या है गलत क्या वो छोड़ एक तरफ, लेकिन इनका मुंह बंद करने के लिए सजा भुगत लो, तैयार हो जाओ, अल्लाह ताला क्या हिसाब होगा, अल्लाह ताला के गवाह पकड़े जाएंगे अगर उन्होंने झूठ बोला है। तो ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सजा भी दे दी। अब क्या रह गया भैया? अब क्या चाहिए तुमको? अब क्या शिकायत है? अब बताइए कि अगर कहीं पे भी कोई हाकिम किसी पे इल्जाम लगा, उसको सजा दे दी गई, और सजा देने वाले भी अहले बैत में से, फिर भी कोई वजह रह जाती है, और ये बंदा कहता नहीं इसकी वजह से जो है सहाबा खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ हो गए? अगर कोई हिमायत किया होता उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने, सजा न दिलवाई होती, या अहले बैत के बजाय खुद खड़े होकर 2 डंडा मार दिया होता ऐसे हल्का फुल्का, ताकि कोई इल्जाम लगाता कि नहीं तेज नहीं मारा है, भाई ये भी इल्जाम नहीं आने दिया कि हम नहीं मारेंगे ताकि कोई ये ना समझे कि हमने हल्का फुल्का मार दिया है। अहले बैत से कहा कि आप मारो, फिर क्या ऐसी कमी रह गई थी कि आप कहते हो कि सहाबा किराम जो है खिलाफ हो गए? तो बहरहाल ये वाकया, ये जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर भी जो है उन्होंने एक्शन लिया। और ये कोई अच्छा, कुछ लोगों ने क्या कहते हैं जब हम ये बात कहते हैं ना कि जुर्म साबित नहीं था फिर भी उन्होंने सजा दे दी, तो कुछ लोग मौजू बदल देते, कहते हैं नहीं तो फिर तो गलत हो गया ना, जुर्म साबित नहीं था तो क्यों सजा दिया?
अरे भाई इससे पहले सही बुखारी की रवायत है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के दौर में साद रज़ी अल्लाह तआला जो जन्नती सहाबी हैं, कूफा में इमाम थे, उन बदमाशों ने जो है इल्जाम लगा दिया कि इनको नमाज ही पढ़ाना नहीं आता। भाई शर्म नहीं आनी चाहिए, जन्नती सहाबी के बारे में कह दिया उनको नमाज पढ़ाना नहीं आता है। उनकी औकात देखिए आप, एक अजीम शान सहाबी के बारे में कहते हैं कि उनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंक्वायरी की, जुर्म साबित नहीं हुआ, उसके बावजूद भी माजूल कर दिया, उनको हटा दिया, उनको हटा दिया। कोई माइकल नहीं बोल सकता कि उनका जुर्म साबित था ना, उनकी तरफ जो तहमत मंसूब की थी नहीं साबित हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अहले कूफा का मुंह बंद करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने उनको माजूल कर दिया। तो क्या यहाँ भी हिम्मत है किसी के कहने की? या तो आदमी क्या किसी को ये हिम्मत है कि साद रज़ी अल्लाह तआला पर जो इल्जाम लगाया था वो सही था? क्या कोई हिम्मत कर सकता है कहने की? अगर ये हिम्मत नहीं कर सकता तो फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्यों माजूल कर दिया? यकीनन मसलहत के तीर मंजूर कर दिया, देखा कि जुर्म नहीं, लेकिन फिर भी हटा दिया उनको। तो ऐसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह जो हाकिम होता है, दूरअंदेश होता है, हिकमत मसलहत देख के डिसीजन लेता है कि गरचे उनकी गलती नहीं, लेकिन चलो उनको हटा देते हैं, माजूल कर देते हैं, या कोई सजा बनती है दे देते हैं ताकि लोगों के मुंह बंद हों। तो इस तरह से उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने सजा दे दी। अब क्या रह गया? और अब किस पहलू से? अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते, चलो हम मान लेते हैं कि वलीद ने शराब पी थी, ये एक ही वाकया है ना, ऐसा तो नहीं कि वो शराबी था। मान लिया कि चलो गलती हो गई, शराब पी लिया उसने, और तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु का रिश्तेदार था, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में भी आता है ये शख्स, दूर से आप पूरा नसब देखेंगे तो। लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि अच्छा उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जो रिश्तेदार है, ऐसा नहीं क्योंकि सगा भाई है, भाई माँ की तरफ से रिश्तेदार है, जो कमजोर रिश्तेदार होता है, सगा भाई अगर रहे ना विरासत में तो माँ शरीक भाई को महजूब कर देता हूँ, तो उतना मतलब मजबूत रिश्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लिंक लेके बिला वजह कहते हैं नहीं अपना भाई था इसलिए जो ये सपोर्ट किया। अरे क्या सपोर्ट किया भाई? सजा दिलवा दिया, माजूल कर दिया, और क्या उम्मीद? और वो भी सजा दूसरों से दिलवाया, अहले बैत से दिलवाया, अब क्या कर सकता है आदमी? लेकिन चलो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसने शराब पिया, शराब पीने के बाद हद जारी की गई। अगर हम ये मान भी लें कि शराब पिया और सजा दे दी, तो भी बताइए इस पे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु का क्या कसूर है? उनकी क्या गलती है? किसी भी के घर का कोई करीबी शख्स या कोई भी आमिल कोई गलती कर दे किसी वजह से, तो आप उस्मान बिन अफ़्फ़ान का क्या कसूर है? उन्होंने सजा ना दिया होता तो बोलते सजा भी दे दिया, अब उनकी क्या गलती है? अच्छा इस तरह का एक वाकया मैं आपको दिखा दूं, शराब पीने का, सही सनद के साथ है वो, और उसमें यह साबित है कि जो है उसने जो है शराब पिया। कई लोगों ने इसकी गवाही दी, ये इस रवायत को कई लोगों ने नकल किया है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी नकल किया है अपनी किताब अत-तारीख़ुल औसत में, और कई लोगों ने नकल किया। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में इसकी सनद को सही भी करार दिया। वो वाकया क्या है जरा सुनिए। वो वाकया ये है कि उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तामला कुदामा इब्न मज़ऊन अलल बहरैन, बहरैन पे कुदामा बिन मज़ऊन को आमिल बनाया। वकाना शहीदा बदरन, और ये बद्र में शरीक थे, यानी बदरी साहबी है, बद्र में ये शरीक थे, इनको आमिल बनाया। कहाँ का? बहरैन का आमिल बनाया। ये कौन है? ये किनके आमिल हैं? ये खलीफे दोम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आमिल हैं, इनको बहरैन का जो है आमिल बनाया। उसके बाद क्या हुआ? और अच्छा ये कौन थे? देखिए ये सिर्फ उमर रज़ियल्लाहु के आमिल नहीं थे, उनके रिश्तेदार भी थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहनोई भी थे ये, क्योंकि इसी रवायत में लिखा हुआ है कि वह हुआ खालू अब्दुल्लाह इब्न उमर व हफ्सा फ़क़दिमल जारूद व हुवा सईद अब्दुल कैस। ऐसा इसमें क्या है कि फ़क़ाल, आगे रवायत में है फ़क़ाल इन्न कुदामा इब्न मज़ऊन शरिबा फ़सकिरा फ़अक़ामत इमरातुहु हिंद बिनतुल वलीद अला ज़ौजिहा शादा। अच्छा ये यहाँ पे मुख्तसर रवायत है, लेकिन दूसरी रवायतों में इसकी डिटेल आई है। मुस्तद फारूक जो रवायत है, जो किताब है इमाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की रवायत है, जहाँ एक जा की गई इकट्ठा, उसमें कई रवायतें मौजूद हैं। हाशिया में भी मुहक्किक ने भी कुछ रवायतें दर्ज की हैं, उसमें पूरी तफसील मौजूद है कि उनकी बीवी ने भी गवाही दी कि हाँ ये शराब पिए थे, कई लोगों ने कहा कि शराब पिए थे। उसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंक्वायरी की और फिर हुक्म दे दिया कि इन पर कोड़े लगाए गए, चनाचे में कोड़े लगाए गए। अब बताइए क्या इसी तरह का वाकया जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में आप कह रहे हो, इसी तरह का वाकया तो खुद खलीफे दोम के बारे में पेश आ चुका। खलीफे दोम के रिश्तेदार ने शराब पी और खलीफे दोम तक बात पर उन्होंने कोड़े लगवा दिए।
तो क्या कोई उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के खिलाफ खड़ा हुआ? किसी साहबी ने कोई बगावत की कि नहीं आपके आमिल ने शराब पी लिया, आपने हद भी जारी कर दिया, तो भी आप हटो, खिलाफत छोड़ो, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी? किसी ने कोई खड़ा हुआ, कोई एहतजाज हुआ, कोई प्रोटेस्ट हुआ? उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला के खिलाफ कोई हंगामा हुआ? नहीं हुआ। तो ये सेम वाकया जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बयान किया जाता है, यही वाकया तो अहद फारूकी में भी पेश आ चुका। शराब पीने वाला भी रिश्तेदार है उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, उन्होंने हद भी जारी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद कोई हंगामा नहीं हुआ। तो ये वजह, अगर ये वजह होती ना उनको शहीद करने की, उस्मान बिन अफ़्फ़ान की, तो फिर ये वजह होती तो फिर उमर खलीफे दौम के भी खिलाफ सब हो जाते ना, क्योंकि सेम वाकया वहां भी पेश आ चुका है। पता चला है कि ये वजह नहीं है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने की ये वजह नहीं है, वो तो दूसरी वजह, इनके आमिल को परेशान किया गया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु को परेशान किया। वो जो कूफी थे, जो मुनाफिक थे, जो सबाई थे, ये लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, सहाबे किराम से जलते थे, उस्मान में ये तख्ते खिलाफत पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने शहीद किया। ये आतंक मचाना, ये जो गवर्नर थे किफायत भाई, हजरत यानी वलीद बिन उक़बा, तो कहीं एक ही नहीं, मतलब इतने फित्तीन लोग थे ये कि 4-4 5-5 गवर्नर वहां बदले गए भाई, बदले गए। सही बात है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले से फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के गवर्नर मौजूद थे, उनके खिलाफ इन लोगों ने साजिश फितना किया। उनकी जगह पर जो है साद बिन अबी वक्कास को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकर्रर किया, और इन पर भी क्लेम लगाया गया कि उन्होंने तो देखिए उनको हटा करके साद बिन अबी वक्कास को लगा दिया, जबकि साद बिन अबी वक्कास बहुत माहिर थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में इनको आप जो है फिट करने का इरादा भी किया था, और हजरत उस्मान गनी को ये कहा था, एक मिनट, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहा था कि साद बिन अबी वक्कास से जरूर काम लेना है, और ये फातिह किसरा थे, बहुत माहिर आदमी थे, और वो एरिया भी वही आता था, तो उस एरिया में रह करके ये बेहतरीन तरीके से कर सकते थे। लेकिन इनके खिलाफ भी साजिश हुई भाई, खाली यही थोड़ी माजूल हुई, फिर इनके खिलाफ एक खूबियों ने शिकायत, मतलब ये किसी से मुतमईन नहीं होते थे ना। आज भी जो है हम लोग जो है मस्जिद मदरसा से जुड़े हुए हैं, जहां ज्यादा फितना होता है वहां लोग कहते हैं फला जगह का कूफा है। तो बहरहाल वो जो कूफा था फितनों की आमाज़गाह था, तो वहां पे साद बिन अबी वक्कास से भी मुतमईन नहीं हुए, तब वलीद बिन उक़बा को मुतय्यन किया गया। और वलीद बिन उक़बा भी कोई मामूली आदमी नहीं थे, अहद सिद्दीकी में काम कर चुके थे, अहद फारूकी में काम कर चुके थे सालों तक, और दोनों खुलफा ने उन पे एतमाद किया हुआ था, उनके दयानत पे एतमाद था, उनकी सलाहियत पे एतमाद था, तो उनकी सलाहियत और उनकी दयानत के पेश नज़र उनको मुतय्यन किया गया। फिर अभी आप किफायत भाई ने पूरी तफसील बताई कि किस तरह इनके खिलाफ वो साजिश करते रहे, फिर कोई क्लेम लेके आए नहीं कबूल किया गया, फिर कोई इल्जाम लेके आए नहीं कबूल किया गया, फिर अब की बार शराब नोशी का इल्जाम लेके आए, और अंगूठी निकाल के पता नहीं कैसे ले आए थे, वो कैसे अंगूठी किस जुगाड़ से उनको मिल गया, अब वो अंगूठी लेके आ गए, कहा देखिए इस हालत में थे कि अंगूठी निकालने का हमको मौका मिल गया। इस तरह करके कुछ ना कुछ करके उनको माजूल कराया और उनको सजा हुई। फिर उसके बाद में जो है, फिर बाद में जो है सईद बिन आस भी वहां गवर्नर होने के लिए आए, उनको भी परेशान किया इन लोगों ने, फिर अबू मूसा अशरी हुए, ये सारे गवर्नरों का तबादला हुआ। इसमें तो क्लेम बनता है कूफियों पर, इन पर जो है जरह करनी चाहिए और इनकी बुराई बयान करनी चाहिए, लेकिन जिनकी बुराई बयान करनी है उनकी बुराई नहीं बयान करके, जबकि उस्मान गनी पर क्लेम रखा जा रहा है, जो है एलिगेशन लगाया जा रहा है, और या तो आपके गवर्नरों पर एलिगेशन लगाया जा रहा है। अच्छा, मैं ऐलान करना चाहता हूँ, एक भाई बैक स्टेज ज्वाइन हुए थे जिन्होंने अपना नाम में लिखा था मैं अली मिर्जा का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। हम लोग ओपनिंग कमेंट में शेख सरफराज भी एक वीडियो का एनालिसिस देने वाले हैं, लेकिन दरमियान में आपको ले लेंगे। आप आइए वापस, हाँ वापस आइए, जिन्होंने अपना नाम ये रखा था। मैंने आपको व्हाट्सएप पे इमेज भेजी है, ज़ैद भाई इसको कंप्लीट कर लेना इस वीडियो को, फिर नहीं मैंने आपको वो इमेज भेजी है मिर्जा अली इंजीनियर के किताब से व्हाट्सएप पे, वो आप वही शेयर कर दे। उसने मुझे तर्जुमे में खयानत की, असल में मैं वो दिखाना चाह रहा था। ज़ैद भाई शेयर कीजिए, जस्ट कर आपको देखिए मैंने वो ग्रुप में भेजा है, मैंने आप उससे शेयर कर दीजिए। अभी कंप्लीट हो जाता है ज़ैद भाई, ये टॉपिक जी अभी मैंने भेजा है, उसके बाद हम ले लीजिए। ये देखिए शेख, इसने क्या तर्जुमा किया है, थोड़ा बड़ा कीजिए। ये इसने तर्जमा किया है कि जिन्होंने इस शख्स के इक्तिदार का मजा लिया है, यानी सैयदना उस्मान, उसकी तलखी भी बर्दाश्त करें। नहीं ये मतलब ये एकदम तहरीफ है, बकवास खुराफात। ये नालायक कहाँ से तर्जुमा लेके आ गया इसमें?
तो वही मैं चाह रहा था कि आप एक्सप्लेन करिए, फिर से एक्सप्लेन करिए अरबिक के साथ, आप जो एक्सप्लेन करें जी। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। अरे सबसे वाज़ेह बात तो ये है कि उसमें वल्ली हा रहा में हा का जो जमीर है वो तो मुअन्नस जमीर है, तो उस शख्स की तरफ कैसे हो जाएगा? वो हा रहू थोड़ी है, हा रहा है तो मुअन्नस की जमीर है, तो वो शख्स की तरफ कैसे लौटेगी? वो मुज़क्कर जमीर है ना, तो वो शख्स की तरफ कैसे लौटेगी? मेरे ख्याल से आवाम के लिए थोड़ा और आसान तरीके से एक्सप्लेन करें। असल में वो जो शेख ने जो इबादत पढ़ी थी ना अभी, जिसकी तशरीह वो कर रहे थे वल्ली हा रहा, तो उसमें हा रहा में जो मतलब हार मतलब जो हा की जमीर है आखिर में हा रहा, तो अरबी में हु की जमीर होती है जो मुज़क्कर की तरफ यानी मेल की तरफ लौटती है, और हा यानी मुअन्नस की जमीर है। तो अगर ये कह रहे हैं कि इस शख्स से तो मुज़क्कर हो गया ना, तो अगर इस शख्स की तरफ बोलना होता तो हा रहू बोलते, हा रहा नहीं बोलते, तो वहां तो हा रहा का लफ्ज है, तो जमीर मुअन्नस की है और ये बंदा तर्जमा कर रहा है उस शख्स का मजा वो ले, तो वो तर्जमा इसने जानबूझ करके खयानत की है तर्जमे में। चलिए ये एक वो खिलाफत की तरफ इशारा किसकी तरफ वो है? खिलाफत की तरफ इशारा है, ना कि वलीद इब्न उक़बा की तरफ इशारा नहीं, हो खिलाफत की तरफ इशारा है। वो खिलाफत की तरफ जमीन जा रही है, इमारत की तरफ, वहां पे मेंशन नहीं है, पोशीदा है वो, यानी वो अंडरस्टूड है, वो चीज अंडरस्टूड है कि ये जो हुकूमत की बागडोर है ये आपने संभाली है, तो ये जिस तरह से आपने संभाली है, तो अगर इसके साथ कोई ऐसी मुसीबत आती है तो भी आप संभालिए ना, हम क्यों जाए सजा देने के लिए? आप यानी हजरत हसन ने जो कहा, हजरत हसन ने ये कहा कि खिलाफत में जो फायदे हैं, क्योंकि आप उसका फायदा उठा रहे हैं, तो जो इस तरह की मुश्किल फैसले हैं उसका भी जिम्मेदार आपको बनना चाहिए, वो ये बोलना चाह रहे हैं। और इसने तर्जमा ये कर दिया कि इस आदमी से फायदा आप उठा रहे हैं तो इसका नुकसान भी आप बर्दाश्त करें। तो वो आदमी की तरफ जमीर लौट ही नहीं रही है, शख्स की तरफ नहीं जमीर लौट रही है, बल्कि वो खिलाफत की तरफ जमीर लौट रही है। पर अगर वो खिलाफत मान लेगा, मैं एक छोटा सा वाकया बता दूं, शायद इससे थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। बहुत सालों पहले की बात है, मैं एक इदारे में काम करता था, तो एक साहब जिम्मेदार थे, बहुत अच्छे जिम्मेदार थे वो, तो वो हमेशा सबका नोटिस लिखते थे, मतलब निकालने, मतलब किसी के बारे में फरमान साजिद करते थे, जो भी होता था इनको ओहदा देना है, ये करना है, वो करना है, बहुत खूबसूरत फैसले करते थे, बहुत खूबसूरत फैसले करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो एक ऐसे शख्स, एक मुजरिम में पकड़ा गया, तो कमेटी ने फैसला किया कि इनको निकालो, तो वो उनका बड़ा करीबी था बंदा, तो जब कमेटी ने कहा निकालो ना, तो उनसे कहा गया कि भाई आप का हमेशा का काम है, आप लिख दीजिए नोटिस। उन्होंने मुझसे कहा कि शेख किफायत आप लिख दीजिए। मैंने उनसे कहा वल्ले हारा मैंने कहा भाई अभी तक आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हर तरह के फैसले कर रहे हैं, आज इस बंदे का मसला आ गया तो मैं जाऊं दुश्मनी लेने के लिए? जिम्मेदार आप हो, नाजिम आप हो, हर मामले में फैसले आप करते हो, बहुत बड़े अगुआ आप बन के बैठे हो, और किसी को सबक सिखाना हो, किसी के साथ दुश्मनी पालना हो तो मैं आगे बढ़ूं? मैं कहा तुम्हारे हाथ सड़ गए हैं, लिखो, तुम्हें लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखूंगा। तो ऐसे, तो कहने का मतलब ये है ना कि आप हाकिम हैं, आप खलीफा हैं, तो आप जिस तरह से फैसले करते हैं, तो अब ये जो एक मुश्किल घड़ी है, यानी एक बंदे पर केस किया गया है, दावा किया गया, उसका साबित भी नहीं हो रहा, तो ऐसे नाजुक मसले में मुझे क्यों फंसा रहे हो भाई? ऐसे नाजुक मसले में मैं क्यों जाऊं इन्वॉल्व होने के लिए? आप, अगर आपका ये फैसला है तो आप जो है हद भी जारी कर दीजिए, फैसला आप करेंगे और फिर मैं जाऊं उसको मारने के लिए? तो हसन रज़ी अल्लाह जो बहुत ही, उनकी जो शख्सियत है ना वो भी पढ़ने के लायक है। हसन रज़ी अल्लाह की बहुत प्यारी शख्सियत। मेरा एक लेक्चर है हसन रज़ी अल्लाह पर, मेरा पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, आप सुने तो आपको पता चलेगा कि कितनी नरम तबीयत के मालिक थे वो, किस तरह से इन सब मामला से अपने आप को दूर रखते थे। तो ये उस जुमले का मतलब है, ये इशारा हुकूमत की तरफ है, खिलाफत की तरफ है, वलीद की तरफ इशारा नहीं है कि इस बंदे का आपने मजा लिया है, इसकी हुकूमत का आप जो है इसकी तलखी भी जलिए, नहीं, वो खिलाफत के बारे में वो इशारा है। जी अच्छा, क्या बात हो रही थी हमारी? मैं ये एक स्क्रीन पे डाल के ला रहा हूँ ताकि पब्लिक को दिखाई दे एकदम सामने। जस्ट 1 मिनट में ला रहा हूँ, तब तक आप गलत तर्जुमा किया इसका, ताकि सब लोगों को दिखाई दे एक सामने कि अरबिक टेक्स्ट के अंदर क्लियर कट जमीर जो एकदम इब्तिदाई स्टार्टिंग जो पढ़ता है ना स्टूडेंट,
اس کو ہا اور ہو معلوم ہوتا ہے کہ ہا مؤنث کے لیے، ہو مذکر کے لیے. وہ ہا مؤنث والی ضمیر ہو مذکر ایک انسان کے لیے، مرد کے لیے لا کر ویسا ترجمہ کر کے اپنے ایجنڈا کو اس حدیث میں فٹ کر رہے، صحیح مسلم کی حدیث میں، جس کے اندر ویسی کوئی بات ہے نہیں. اور یہ ایک مثال ہے ایک بلیٹنٹ مس ٹرانسلیشن کی. ہاں تو ایک سامنے اور آپ کو میں اسکرین پہ سامنے لا کے بتا رہا ہوں جیسے 1 منٹ میں، تب تک کچھ اور بات کمنٹ ہے لے لیجیے. اگر یہ اس کو سیدھے پھر یہ پورا شیعت کا اعلان کر دینا چاہیے. کئی لوگ ہیں اپنے لوگوں کے درمیان، وہ تو کہتا بھی ہے، ہم شیعان علی، پھر بولتا نہیں پولیٹیکل وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہتا، وہ تو کہتا بھی ہے. تو ان کو مطلب کلیئر، یہ لوگ کلیئر اپنے آپ کو اعلان اس لیے نہیں کرتے کہ جیسے ہی یہ لوگ اپنے آپ کو رافضی کھلا بول دیں گے تیسے ہی لوگ ان کو سننا بند کر دیں گے. ان کو سنتے لوگ اس لیے ہیں کہ ان کو اہل سنت کا فرض سمجھتے ہیں، اور اہل سنت کا فرض سمجھ کر کے ان کو جو ہے فرض سمجھ کے سنتے ہیں، پھر گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ اپنی پوزیشن نہیں کلیئر کرتے ہیں. اور نقد کرنا ہوتا ہے تو میں نے جو مثال دی تھی وہ ایک کر کے سب پہ کرتے ہیں. جہاں زیادہ امکان ہوتا ہے وہاں زیادہ کرتے ہیں، جہاں زیادہ بھڑک جانے کا امکان ہوتا ہے وہاں کم کرتے ہیں، وہاں شوشہ شبہ چھوڑ کے نکل جاتے. اور جہاں زیادہ موقع ملتا ہے کوئی جو صغار صحابہ میں سے ہے، جیسے مروان کا جو نام لیتے ہیں، اب وہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت غالباً جو ہے 8 سال ان کی عمر رہی ہوگی. تو اور کچھ لوگ مطلب یہ کہ اختلاف بھی ہے تھوڑا صحابیت میں، لیکن یہ ہے کہ نہیں آپ تھے. تو ایسے جو صحابہ ملتے ہیں جو دیگر صحابہ کے مقابلے مراتب میں چھوٹے ہوتے ہیں تو ان پر بڑا یہ لوگ ایسے جب ان کی بات آتی ہے نا تو ایسے لوگوں کو یہ جھٹ سے صحابہ میں شمار کر لیتے ہیں. وہ جو حرہ کا واقعہ حرہ کا بیان کرنا ہوگا نا تو سارے بندوں کو صحابی شمار کر لیں گے، سب کو صحابہ. یہ مروان کو صحابی نہیں مانیں گے. مروان جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا نا کہ عبداللہ بن زبیر کے طبقے کے ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر تو صحابی ہے نا، انہی کے ہم طبقہ مروان ہے، اور کچھ لوگوں نے صحابہ میں ان کو شمار بھی کیا. تو مروان کو صحابی نہیں مانیں گے نا، مروان کو نہیں مانیں گے، ولید کو صحابی نہیں مانیں گے. اور جب ان کے بات من کی بات آ جائے گی، ان کا جو دنگا فساد رہے گا اس میں کوئی شریک رہے گا تو سب صحابی بن جائیں گے، سب کو صحابی بنا ڈالیں گے. حجر بن عدی کو بھی تو بنا دیا نا، پھر سب کو بنا یہ ڈالیں لو گے. میں سامنے لے آیا محمد بن ابی بکر کو، محمد بن بکر وہ بھی صحابی نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارے محمد بن ابی بکر کے بارے میں نے لکھ دیا تھا ایک بار کہ صحابی نہیں. تو ایک بندہ تو بولا صحابہ کا گستاخ، اس نے محمد بن ابی بکر کی صحابیت کا انکار کیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت بہترین انداز سے، میرے فیس بک پیج پہ وہ آرٹیکل ہوگا، بہت بہترین انداز میں جو ہے محمد بن ابی بکر کے بارے میں پورا ایکسپلین کیا ہے کہ یہ بندہ صحابی نہیں ہے، یہ صحابی. اور وہ جس کو قتل کیا تھا وہ کیا نام ہے، جس کو قتل کیا تھا حضرت معاویہ نے قتل کروایا تھا، جو خطبے میں کیا وہ بھی صحابی نہیں ہے. نہیں ہاں وہ بھی صحابی نہیں، پر اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین صحابی اس کو قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. محمد بن ابی بکر تو نہ صرف ایک صحابی نہیں تھے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ کوئی ایسی فضیلت بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی ایسی کوئی فضیلت اور ایسی کوئی مطلب ایسا کوئی شرف اور مرتبہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. ایک عام مطلب عام تابعی کے طور پہ ان کا نام لیا جاتا ہے. اچھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ محمد بن ابی بکر، یہ جیسے لوگ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ بھی شریک تھے، یہ لوگ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں بڑھا چڑھا کے، ان کو بہت بڑا ہیرو بتاتے ہیں. یہ علی مرزا بھی محمد بن ابی بکر کو ہیرو بنا کے پیش کرے گا، مالک اسد جیسے دہشت گرد کو ہیرو بنا کے، آتنکی کو ہیرو بنا کے پیش کرے گا. تو جتنے یہ بلوائی لوگ ہیں، جتنے فسادی لوگ ہیں، ان کو پورا ہیرو بنا کے پیش کرے گا. اچھا مرزا علی انجینئر ہیرو بناتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، شیعہ حضرات حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابو بکر کو مرتد بولتے ہیں، اور محمد بن ابی بکر کو اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیتے ہیں. مطلب حضرت ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، اور محمد بن بکر سے کیونکہ ثابت ہے کہ وہ حضرت عثمان کے مخالفین میں بہرحال تھے، گرچہ انہوں نے قتل نہیں کیا، واپس آ گئے تھے، تو ان کے ابا کو گالیاں دیتے ہیں، مرتد بولتے ہیں، اور محمد ابن ابی بکر کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ولی بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کے ساتھ میں تھے. ارے بھائی وہ ابن زیاد کا جو مسئلہ نا پچھلی میں آیا تھا، کسی نے پوچھا کہ ابن زیاد کے بارے میں بار بار کوئی سوال کر رہا تھا، تو ہم نے کہا بھائی ابن زیاد کتنا بڑا ظالم ہو، کیسا بھی ہو، لیکن اگر اس کا کسی قتل میں ہاتھ نہیں تو ہم کیسے بولتے ہیں اس نے قتل کیا ہے؟ فرعون کا بھی کسی قتل میں ہاتھ نہیں ہوگا تو اتنا بڑا ظالم تو کیا فرعون کو بول دیں گے سب کا قاتل ہے؟ جس کو نہیں مارا ہے اس کو تو نہیں کہیں گے نا اس نے مارا ہے، جس کو مارا قاتل ہے. لیکن جس کو فرعون نے نہیں قتل کیا ہم اس کو فرعون کو اس کا قاتل تھوڑی بنا دیں گے. تو ابن زیاد کتنا بھی برا ہو تو اگر صرف اتنا بول دو نا کہ فلاں قتل میں ابن زیاد کا ہاتھ نہیں، بولے گا یہ ابن زیاد کا دفاع کرنے والا ہو گیا. اب ایک گدھے مالک کلشتر کا دفاع کرتا، شرم نہیں آتی؟ مالک یہ ابن زیاد مالک جو اشتر ہے نا وہ ابن زیاد سے درجنوں گنا زیادہ آتنکی ہے.
इब्ने ज़ियाद फासिक फाजिर कैसा भी हो, लेकिन मालिक अल अश्तर से लाख दर्जा बेहतर है। मालिक अश्तर जैसे आतंकी से, दहशतगर्द से तो लाख दर्जे बेहतर है। मैं इसको नहीं कहता हूँ कि इब्ने ज़ियाद जालिम फासिक नहीं था, ये भी जालिम है, ये भी फासिक है, बिला वजह इसने भी कुछ लोगों को मारा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसका जुर्म मालिक अल अश्तर से बड़ा नहीं है। मालिक अश्तर ने उस्मान रज़ी को खलीफे वक्त को शहीद करवाया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जन्नती का उनको शहीद करवाया है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जिनके बारे में कहा कि अल्लाह के नबी वफात को इनसे राजी थे, उनको शहीद करवाया। इतना बड़ा आतंकी उसको हीरो बनाते हैं। और इब्ने ज़ियाद के बारे में किसी ने कहते अरे ये इब्ने ज़ियाद की दफा करते, अरे तुम मालिक अल अश्तर जैसे कुत्ते का दफा करते हो। कुत्ता मैं नहीं बोल रहा हूँ, सफिया उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिसको कुत्ता कहा है, सहाबा ने जिसको कुत्ता कहा है, सहाबा ने जिसको बद्दुआ दी है, उम्महातुल मोमिनीन जिसको बद्दुआ दी है, उसे अपने सर पे बिठाते हो। और इब्ने ज़ियाद के बारे में किसी ने कह दिया कि फला कत्ल में इसका हाथ नहीं है, कहते नहीं ये इब्ने ज़ियाद इसका दफा करने वाला, शर्म आनी चाहिए तुमको। अच्छा, यहाँ पर ये स्क्रीन पर आ चुकी है, ये मैं फुल स्क्रीन पर ले रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से खयानत है। हदीस सही मुस्लिम की है, सही मुस्लिम की हदीस है, हवाला आपके सामने 1707A। लेकिन आप देख रहे हैं अरबिक टेक्स्ट, इंग्लिश में तर्जुमा टॉप पे देख सकते हैं, और देख सकते हैं यहाँ इन्होंने क्या तर्जुमा किया। शेख सरफराज आप फिर एक बार बता दीजिए। जी, ये जो वल्ली हा रहा मन तवल्ला का रहा, जो इन्होंने कहा ना, इसमें हा रहा की जमीन असल में खिलाफत की तरफ लौट रही है। तो मतलब ये है कि जिसने इस खिलाफत का मजा लिया है वो जो है वो इसकी तलखी भी बर्दाश्त करे, यानी खिलाफत के जो फवायद है वो आ रहे हैं। तो ऐसे अगर मुझे, क्योंकि बहुत तल्ख फैसला था ना, एक आदमी पर जुर्म साबित नहीं हो रहा है, जो लोग 2 लोग गवाह देने के लिए आए हैं उनमें से किसी ने भी उनको शराब पीते हुए नहीं देखा है। बस एक आदमी ये कह रहा है कि इन्होंने फजर की नमाज 2 की जगह 4 रकात पढ़ा दी, एक आदमी ने कहा कि मैंने उल्टी करते हुए देखा है, किसी ने भी उनको शराब पीते हुए नहीं देखा, किसी के पास सबूत नहीं शराब पीने का। तो ऐसे आदमी पर कोड़े लगाना एक बुरा फैसला था, मुश्किल फैसला था, कड़वा फैसला था। हज़रत हसन ने कहा कि हम कोड़ा नहीं लगाएंगे, मतलब आप इसके फायदे उठाते हैं खिलाफत के, तो ये कड़वा फैसला भी आप करें। तो वल्ली हा रहा यानी इस खिलाफत के तलखी को भी वही बर्दाश्त करे जो इसकी उसकी मिठास को बर्दाश्त करता है। और अब तो इसमें हा रहा में हा की ज़मीर है जो खिलाफत की तरफ लौट रही है, और इन्होंने कह दिया इस शख्स का मजा, इब्तिदार बीच में लिख दिया इस शख्स का मजा। तो शख्स तो मुजक्कर है, तो अगर शख्स मुराद होता तो यहाँ पे हार रहा के बजाय हार रूह होना चाहिए था, क्योंकि हु की जमीर मुजक्कर है, तो अगर वो किसी शख्स की तरफ लौट रही है तो वो हार रूह होना चाहिए था। पर इसने ना खयानत करते हुए ये बताने के लिए कि हजरत वलीद बिन उक़बा जो है वो हजरत उस्मान के बहुत चहेते थे, और नौज बिल्ला की कोई हजरत उस्मान उसके कोई फायदा उठा रहे थे, उसका मजा ले रहे थे, इसलिए उसको जो है इसको कोड़ा लगाना है फैसला जो है ना हजरत उस्मान के लिए कोई तल्ख फैसला था। तो ये इसने खयानत की है। हार रूह अगर होता तो इसका ये तर्जमा सही होता, लेकिन यहाँ पे हार रहा है और हा की जमीन जो है वो खिलाफत की तरफ लौट रही है, तो खिलाफत या बादशाह जो है ना ये मुअन्नस कसेगा, इसलिए हार रहा उन्होंने कहा है। ऊपर इंग्लिश में ज़ैद भाई कहाँ पर ट्रांसलेशन है, लेट सफर द हीट, लेट हिम सफर द हीट ऑफ, देखिए इन्होंने भी तर्जमे में वही लिखा है खिलाफत की, हीट ऑफ खिलाफा यानी जो उसकी गर्मी है उसको वही बर्दाश्त करे, हु हैज एंजॉयड इट्स कोल्डनेस। है वो सही तर्जुमा इंग्लिश में? हाँ सही तर्जमा है, उसने भी खिलाफत, जो इंग्लिश में भी तर्जमा जिन्होंने क्या उन्होंने भी खिलाफत ही लिखा है, और वो सबने खिलाफत ही माना उसका लिया है, किसी ने भी। हाँ, यानी इंग्लिश में खिलाफत है, और देखिए और ये इन्होंने जो तर्जमा किया है दिस मैन से किया है,